So last session we have seen what is class, what is object, and some analogies related to class and object, and some variables क्या होता है, methods क्या होता है, little bit idea we have seen, not that into great. So just to quickly recap what is class and object. So I have taken one common use case, that is floor plan and the house, right? Now if you want to develop or construct a house, we need to have a plan first, right? If you have a plan, and then with the help of that plan we can create any number of houses, any number of home. तो पहले हमें क्या चाहिए, प्लान चाहिए. So plan, it is on paper, right? So we need plan first, and then we have the home or house. Similarly, class and object you can think of as plan as a class, and the actual house you can think of as. So I have a plan, that is floor plan. With the help of that I can do a construction of house. Now this you can remember as a class and this as a object. Now class you can think of, it is a set of instructions, set of guidelines, set of rules or a template to create object. So what is class? Class is just a structure, set of guidelines, blueprint to create object. Now do we need class first or object first? We need class first. With the help of class we can create the object. So with the help of class we can create the object. Perfect. Now which one is logical entity and which one is physical entity? So class is a logical, this is a logical entity, and object is a physical entity. Why do we need class? What is the need of class? To create objects, okay, but classification. So class word is coming from the word classification. What is the word? Classification. It is coming from the word classification. Classification or categorization or a group or a grouping. So what do you mean by categorization or a classification? चीज़ों को अलग अलग एक ग्रुप में बनाना. लेट्स से कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्या होता है, रिलेटेड लोग रहते हैं उसमें. लेट्स से कोई क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें क्या होता है, रिलेटेड लोग रहते हैं उसमें अंदर, राइट? अभी इफ आई से अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, टीचर कैटेगरी हो गया एक, देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव a student category, that is a class or a classification. So there is a group. Now I just say this is a group of student. Now what is that group or a category? It is nothing but a classification. So I did a classification of multiple objects. So all of us are objects, yes. So we have students, we have teachers. Now I have created a category of student, I have created category of teachers. Now why do we create a categorization? Simple reason. Yes. So we decide how your object will look like. Whom do I call any object? How do I say this is a student or a person? So I need to have certain attributes. So based on that only I can say he is a student or a teacher. He will have certain attributes, certain behaviors. Behavior, he is going to study, he is going to attend classes. So teacher, he is going to teach, attend the classes or conduct the classes, right? So he will have certain attributes and certain behaviors. So how can I identify someone? So we have to have certain criteria. We have to have a criteria, right? So कोई for vehicle है, so how can I say that vehicle is a car or not something? It will have certain properties, certain behaviors. Similarly, any object. Now object can be physical, logical, real world entities. Now let's say bank account, it is a logical entity. Now how actual bank account will look like? It will have customer ID, customer name, then account number, address, customer account number, parents, and there will be lot of attributes. Along with that there will be lot of operations also, behaviors also. So to put all these together, to give a structure, for all of this, so we create a class. So what is object? Object is an physical entity. So when you create an object, what you are doing? We are going to actually occupy the space, memory space. So when you construct a house, you are going to क्या करने वाले आप? जैसे आप कोई घर बनाते हो तो empty land होगा पहले,
तो उसका यूज़ करके आप क्या करोगे, एम्प्टी जो भी घर बना रहे हो, मतलब कोई खाली प्लॉट होगा उसके ऊपर आपने घर बनाया तो जगह आपने ऑक्यूपाई कर दिया, राइट। तो वैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब क्या किया, मेमोरी एलोकेट कर दिया, मेमोरी ऑक्यूपाई किसके लिए, जो भी आपने वो इंस्ट्रक्शन लिखे था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ फील्ड्स रहेंगे, उसको आपने मेमोरी एलोकेट किया। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास or it is a memory space allocated for the class type data, right? So we need class first to create the objects. So from a given class we can create any number of objects, right? So every object will have certain attributes, certain behaviors or methods. So that methods we defined in the class. So how your object is going to look like, that we write inside the class. So where do we write that instructions? Inside the class. Now where this object will be stored, which memory area? This will be stored inside the heap memory area. So this is a memory, this is the data. So this will be stored inside the heap memory area. Where the class structure is going to be stored. What is the name of the memory area? Class or method memory area. So memory is divided into different parts. So your class structure is stored inside the class or method memory area. Structure of the class. How your class is, that instructions has to be stored somewhere. So that memory area is nothing but class or method memory area. तो आपका जो भी क्लास का स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिटेल्स, यस। सो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, कुछ डेटा रहेगा, देयर विल बी सम डेटा. सो दैट डेटा, the object will have certain data, so that are called as instance variables. Yeah. Class or method memory area. This is the name of the memory area. Yes, yes. So memory is divided into multiple parts. So everything will not be stored in one single container, right? So if you see in our house, we have a single place, but there we have created separation. One room, one bedroom, another bedroom, kitchen, hall. So why do we create that? Why don't we put everything in one single shot? Shell office, shell place complete. Why don't we do that? For easy access के लिए, right? For our accessibility, for our easy understanding, right? उसके लिए हम उसको separate करते हैं. Similarly, memory is also divided into different parts: heap memory, stack memory area, then class or method memory area, and so on. There are multiple parts. Execution memory. When object will be created? Yes. So we are talking about now. We are talking about program. Now whenever you want to store some data in the program means at the time of program execution. So this data is temporary. Class or object, this is now execution memory. Which memory we use? RAM. So there your everything will be stored. This is something execution memory. Yes, वो already हो चुका है सब. Java ने करके रखा है सब कुछ. Java as well as operating system has already done that. Right? Okay. So you understood now class and object, which will occupy more space. Object, obviously object. And from a given class, how many objects we can create? You can create any number of objects. You can create any number of objects. ठीक. Now every object will have certain. Now how your object is going to look like? ये हम कहाँ पे लिखते हैं? क्लास के अंदर. कहाँ पे लिखते हैं? क्लास के अंदर. ठीक है. तभी ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या रहेगा? डेटा रहेगा, उसे हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और यहाँ पर बिहेवियर भी बोलते हैं. बिहेवियर मतलब अभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कोई भी अभी बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप? बैंक में से आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हो, राइट? ये कैसे होता है? इसे बोलते हैं आप बिहेवियर, या मेथड भी बोलते हो, या फंक्शन भी बोलते हो इसे आप. देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसीजर, इम्प्लीमेंटेशन, रूटीन, टास्क, बहुत सारे. डेटा को हमने देखा था क्या क्या बोलते हैं हम डेटा को?
Let me write that also. Let's write that class. It is a set of instructions to create an object. It is a logical entity. Class structure will be stored in the class or method memory area. It will be stored inside the class or method memory area. What else? From the given class, we can create any number of objects. Perfect. We can create any number of objects. So why do we need a class? To create objects. So from the instructions only we are going to create the objects. So this class word is derived from word classification. Right? Now to create a class, that is classification or grouping or categorization, we use class keyword. Right? Now how to create a class? So we use a class, it is a keyword, then the class name followed by the curly braces. There we write set of variables, set of methods, then you will have constructors, then you write some blocks. So it is everything is not compulsory, but we write this nested classes also. Right? Now this is a keyword and this is a class name. This is a class name. This is a class name. This is how we create the class. Take. Now, whenever you create a class, what happens? Whether memory will be allocated immediately? Yes. So whatever the data is specified in the class will not get the memory immediately. They will get the memory. Once object is created. Okay, let's talk about object. It is an instance of a class. So what do you mean by instance of a class? It is a memory space allocated for class type data. Then object is an physical entity. Objects will be stored inside which memory area? Inside heap
memory area. They will be stored inside the heap memory area. बहुत easy है. उसके बाद from a given class we can create any number of objects. We need class first to create objects. So why do we need objects in any programming languages? So we need objects in programming language to represent real world physical or logical objects in the program. Simple. Now how to create an object? So first we already have class. So we write the class name. Syntax is class name. Then we have to write reference variable equal to new class name and this one. And this is the example. I will just write it. Student equal to student. This is how we create the object. Now we have in detail we have seen last time what is this and how do we create that. If you see here, this is how we have the class and this is how we create the object. Now out of this, what is object? We already know what is this object. This highlighted part is nothing but a object. So this part is nothing but a object. This part is nothing but a object. So this new is a keyword. This is the constructor. Perfect. Equal to, what is this? Assignment operator. What is this? A reference variable. And this is the class name. Tick. Now last time we have seen in great detail what is reference variable and what is primitive variable. Can someone tell me? Or and in reference variable, we store the other object's address or a memory location. Correct. Now if you see here, now in this case, so 20 is a value that is assigned to A, and what is this int? Int means this 20 is of type integer. So int is a type. Types means the type of the value 20. Hello? हाँ हाँ सर, आप आए हो क्या यहाँ पर? हाँ आ जाओ फिर. मैं थोड़ा अभी क्लास में ही हूँ. ये स्क्वायर है ना आपका, पुणे यूनिवर्सिटी रोड. पुणे यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ उसके बाजू में. मैं यूं ही तो हूँ यहाँ पर, आ जाओ. ठीक है. हाँ हाँ है. ठीक है, कब तक आओगे? चलेगा.
ठीक है, ओके। ठीक है, नाउ इफ यू सी हियर, ये 20 वैल्यू आप असाइन कर रहे हो ए को। व्हाट इज दिस ए? इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर जो क्या करता है, राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को असाइन करता है। और ये 20 कौन से टाइप की वैल्यू है? इंटीजर, राइट। तो सिमिलरली इसको आप समझो जो मैंने भी यहाँ पे क्रिएट किया है, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक, इसको समझो, ये क्या है, ये वैल्यू है, कौन से टाइप की वैल्यू है, ये जो भी डेटा, ये बोला जाता है इसे ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट टाइप का। और ये जो रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न क्या करने वाला है? एड्रेस। ये इसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। मतलब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा देखो। सो एस इज गोइंग टू पॉइंट, एस विल हैव, एस इज अ वेरिएबल, एस इज अ variable which will have, let's say, memory address something, and it will have some address 222. What is this 222? 222 is the location. This is where your object will be stored. So this 222 is the location of your object. This is where your object is stored. So S is holding what? S holds the address or a reference of this particular object. तो S के अंदर आपको क्या वैल्यू मिलेगा? ये वाला। इसलिए S को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, इसलिए इसे बोलते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल। मतलब इसको कैसे रीड कर पाएंगे? मतलब S एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक एड्रेस है और रेफरेंस है किसका? एक ऑब्जेक्ट का। और वो ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का। ठीक है, सो S इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ टाइप स्टूडेंट, राइट। तो इसमें से देखो, ये क्लास नेम हो गया, क्लास नेम यानी ये टाइप हो गया, ये इट इज काइंड ऑफ अ कस्टम डेटा टाइप, आप बोल सकते हो, कस्टम डेटा टाइप है बोल सकते हो। ये वेरिएबल है और दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज कीवर्ड, और ये है कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 3 चीजें, क्लास, न्यू कीवर्ड एंड दी कंस्ट्रक्टर। ये सबका यूज करके आप क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? व्हाट इज द जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर? लॉजिक। कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या? कुछ क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम? वी आर कंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जेक्ट, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब क्या? मेमोरी एलोकेट करना। मेमोरी किसको एलोकेट करते हैं? जो भी क्लास के अंदर आपने लिखा था, स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, उनको वैल्यू असाइन करना, उनको वैल्यू असाइन करना, हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो उनको वैल्यू असाइन करने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। उन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर is a person you can think of who is going to assign some values for this particular, मिस्त्री बोल सकते हो आप, मिस्त्री बोल सकते हो, जो एक्चुअल में बनाता है घर, जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं ना, मिस्त्री बोलते हैं उसे, तो वो लोग आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? allocate the memory space for the variables which are there। मतलब ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन यूज होता है? कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उसके बाद, उसे बोलते हैं, अभी 3 चीज़ों पे फोकस करना है हमें इस वीक, नेक्स्ट वीक भी आल्सो। क्लास ऑब्जेक्ट हमने, वी हैव सीन इन ग्रेट डिटेल, वी हैव सीन 2-3 सेशंस ओनली ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीक वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्लास कंपोनेंट्स। व्हाट इज कॉल्ड एज क्लास कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट्स मतलब क्लास के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, उसे हम देखेंगे। तो क्लास के अंदर हम 5 चीज़ें लिखने वाले हैं। सो व्हाट आर दीज वी आर गोइंग टू सी। उसके बाद ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ऊप्स। ऊप्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऊप्स के अंदर आपके पास 4 कॉन्सेप्ट्स है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 कॉन्सेप्ट्स है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू लर्न दी फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल्स है, इसको नहीं समझेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आएगा। तो इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसके ऊपर फोकस करो। इसके ऊपर जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना और पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत ईजी होगा ये। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज होते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग छोड़ देते हैं, उनको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता है। रीजन बीइंग उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। ठीक है, चलो। सो दिस वीक वी विल बी प्लानिंग ऑन दिस पर्टिकुलर समथिंग कॉल्ड एज
क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसके पहले आपको सबको पता है क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो क्लास ऐसे भी सोच सकते हो, क्लास के अंदर क्या क्या होता है, डेटा हो सकता है और मेथड्स हो सकता है। मेथड्स यानी कि रूटीन या टास्क। तो हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग मतलब क्या, इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ टास्क। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास टास्क रहेंगे, थाउजेंड्स और मे बी हंड्रेड्स ऑफ टास्क रहेंगे। तो उनको आप एक साथ ही लिखोगे, कैसे लिखोगे, उसको थोड़ा सेपरेट करोगे, लॉजिकली सेपरेट करोगे। 1000 में से आपको पता है कि ये 20 टास्क आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी, 20 दीज आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर। लेट्स से आपके पास कस्टमर रिलेटेड टास्क है, कस्टमर रिलेटेड, कस्टमर को ऐड करना, ऑनबोर्ड करना, डीबोर्ड करना, रजिस्टर करना, ये कस्टमर रिलेटेड टास्क आप सेपरेटली लिखो। फिर बैंक के रिलेटेड जो भी होंगे वो अलग लिखो। ऐसे बहुत सारे टास्क होंगे आपके पास, तो ये आप अलग अलग लिखते हो, ठीक है। सो क्लास कंपोनेंट्स इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो क्लास कंपोनेंट्स मीन्स what is this, members which are present inside the class। मतलब क्लास के अंदर जो भी लिखते हैं हम उसे मेंबर बोल सकते हैं। तो क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हो 5 कंपोनेंट्स। पहला होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का यूज करके आप क्या करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द वेरिएबल्स, टू स्टोर सम डेटा, टू स्टोर some data। methods are nothing but task, now you are going to write some task, bunch of task। then to create object we need something called as object। कैसे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, आपको क्रिएट करना है कि आप जो वैल्यू बोलोगे उसके साथ क्रिएट करना है, या कुछ डमी वैल्यूज के साथ, या कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ करना है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब कुछ वैल्यूज रखना, वो जो वेरिएबल्स हैं, तो उन वेरिएबल्स को वैल्यू कैसा चाहिए, कौन सा चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए, डमी चाहिए, या कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, या कुछ एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद आता है ब्लॉक्स। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। अभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो या कोई क्लास लोड करते हो मेमोरी में, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो ब्लॉक्स। तो उस टाइम पे कुछ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे हर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो एक ब्लॉक ऑफ कोड आपको चाहिए कि दिस कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड। जस्ट ओके। सो अभी हम देख रहे थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद हम देख रहे थे क्लास के अंदर कंपोनेंट्स। क्लास, आपको मैंने सिंपल एनालॉजी बोला है कि क्लास मतलब आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब कोई घर बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ब्लूप्रिंट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसका यूज़ करके आप घर बनाते हो, राइट। तो आपका जो प्लानिंग हो गया उसे बोलोगे आप क्लास, और जो घर बना उसे आप बोलोगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास वर्ड मतलब कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग, जिसका यूज करके आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स का कैटेगराइजेशन करते हो। अभी आप लोग कौन से, आप हम सब लोग ऑब्जेक्ट ही है, वी आर ऑल ऑफ अस आर ऑब्जेक्ट्स, ये भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है। तो इन ऑब्जेक्ट्स का एक कैटेगरी बनाते हैं। लेट्स से अभी यहाँ पे हम, हमारे पास 2 लोग हैं, 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं और एक टीचर। तो मैं आपको टीचर कैसे बोलूँ, आपको स्टूडेंट कैसे बोलूँ, how do I say you are a student or you are a teacher, you are from a student category, you are from a teacher category, कैसे बोलेंगे आपको, आपका कुछ एट्रीब्यूट्स होगा, आपका कुछ एट्रीब्यूट्स होगा, क्या एट्रीब्यूट्स होगा, आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, आपकी क्लास होगी, फिर आपके कुछ बिहेवियर्स भी होंगे, मस्ती करना, कभी कभी पढ़ाई करना, ये भी करते हो, राइट। ये सब आप हो गए आपके बिहेवियर। टीचर के क्या गुण होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, बोर करना, लेक्चर देना, ये तो मेरे बिहेवियर हो गया है। कभी कभी गुस्सा करना, कभी कभी चलो प्यार से समझाते हैं, कभी नहीं समझ में तो रिपीट कराओ। फिर आपके एट्रीब्यूट्स, मेरे एट्रीब्यूट्स, मेरा आईडी होगा, नाम होगा, क्या पढ़ाता हो, ये सारा मेरे हो गया एट्रीब्यूट्स। तो हम दोनों में डिफरेंस क्या, आप कौन से कैटेगरी, स्टूडेंट कैटेगरी, और मैं टीचर। तो हम लोगों ने क्या किया, कैटेगरी क्रिएट कर किया, मतलब क्या किया, एक लॉजिकल एंटिटी बनाया। क्लास मतलब क्या होता है, एक लॉजिकल एंटिटी, वो प्रेजेंट है क्या, नहीं है। अभी घर का प्लान बनाते हो आप, राइट, तो घर का प्लान बस पेपर पे होता है और घर एक्चुअल में होता है,
तो यू स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गया, बस वो पेपर पे है। और एक्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग, मतलब जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस, जगह बना के बैठे, राइट। सो वैसे ही ऑब्जेक्ट्स भी आपके क्या होंगे, जगह बनाएंगे, मतलब मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जगह बनाएंगे मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब वहाँ पे मेमोरी आप लोगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जब भी कोई घर बनता है, तो खाली जगह जो होती है उसको आप ऑक्यूपाई करते हो। घर बना रहे हो मतलब क्या बना रहे हो, जो खाली जगह थी उसके ऊपर आपने कुछ तो बना दिया। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे हो मतलब आप क्या बना रहे हो, जो मेमोरी होगा, कौन सा मेमोरी, एग्जीक्यूशन मेमोरी, उसमें कुछ डेटा रखोगे आप, राइट। मेमोरी एलोकेट होता है मतलब वहाँ पे कुछ रखते हो आप। जैसे कि अब ये डेस्क है, अब ये डेस्क कोई बैठा नहीं है, तो ये क्या है, अनअलोकेटेड। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए या यहाँ पे कुछ एलोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को बिठाना पड़ेगा। एक तो एक्चुअल डेटा रखो, नहीं तो कुछ डमी कुछ डेटा रख दो, तभी ये एलोकेट हो जाएगा। बस में बोलते हो ना, ये रुमाल रखो, बैग रखो, तो ये आपने एलोकेट करके रखा है, राइट। आप तो एलोकेट कैसे करोगे, एक तो एक्चुअल डेटा रखो, नहीं तो डमी डेटा रखो। अभी घर कौन बनाता है, मिस्त्री बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स कौन बनाता है आपका, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऐसा आदमी सोचो कि वो क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट। मेमोरी में डेटा रखने का काम कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर। अभी तीन चीजें, क्लास, ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बहुत ये प्रोग्रामिंग से पहले ये आई है कंसेप्ट, उप्स 1960s में। प्रोग्रामिंग तो बाद में आई है, लेकिन ये कंसेप्ट पहले, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनकैप्सुलेशन, ये सारी कंसेप्ट पहले है हमारी। बाद में क्या है आपकी प्रोग्रामिंग। ऐसे नहीं कि पहले प्रोग्रामिंग बाद में ये, पहले क्या है, ठीक है। तो अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले क्या आता है, क्लास आता है, ऑब्जेक्ट आता है, मुर्गी आता है, अंडा आता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्लास आएगा और बाद में फिर ऑब्जेक्ट। सो वी नीड क्लास फर्स्ट, वी नीड क्लास फर्स्ट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो पहले प्लान चाहिए, उसके प्लान का यूज करके आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। तो पहले आप क्लास बनाओगे, फिर ऑब्जेक्ट्स। कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो एक क्लास का यूज करके, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन क्रिएट। क्लास नहीं है, आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो नहीं, कंपलसरी क्या है आपको, क्लास। क्लास है तभी आप ऑब्जेक्ट बना पाओगे, नहीं तो नहीं। एक क्लास का यूज करके आप कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, बहुत सारे। तो क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, क्लास इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ रूल्स, टेम्पलेट, ढांचा, जिसका यूज करके आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो। सेम लॉजिक आप भी प्रोग्रामिंग में बोलते हो। तो कोई पूछता है आपको व्हाट इज क्लास इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लास जावा में भी है, C++ में भी है, C# में भी है, पाइथन में भी है, जावा से किधर भी जाओ, क्लास कंसेप्ट हर जगह है। क्योंकि क्लास कंसेप्ट पहले आया और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बाद में आई है। तो कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो, हर जगह पे आपको ये कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो क्लास कोई पूछेगा इंटरव्यू में या कहीं पर भी पूछेगा, व्हाट इज दैट, इट इज अ लॉजिकल और फिजिकल एंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लॉजिकल या फिजिकल, फिजिकल मतलब जो एक्चुअल में जगह लेके बैठता है, लॉजिकल मतलब उसको जगह नहीं चाहिए। तो क्लास इज अ जस्ट अ लॉजिकल एंटिटी। क्या है, लॉजिकल एंटिटी। और फिजिकल मतलब जिसको जगह चाहिए, राइट। तो क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ मैनुअल बोल सकते हो, हैंडबुक बोल सकते हो, रेसिपी बुक बोल सकते हो, जिसका यूज करके आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। सो व्हाई डू वी नीड क्लास, to create objects? Very simple, we need class to create objects. So from a given class, how many objects we can create, you can create any number of objects, you can create any number of objects, right? ठीक है, यहाँ तक आते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे बोलेंगे, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब कॉपी, इंस्टेंस मतलब कॉपी, किसका यूज करके आपने बनाया, क्लास का यूज करके। तो आपने क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया। घर कैसे बनाया आपने, ये डिट्टो ऐसा प्लान था, उसका एग्जैक्ट कॉपी आपने यहाँ पे बना दिया। इंस्टेंस मतलब कॉपी, राइट। सो वी आर इंस्टेंस ऑफ आवर पेरेंट्स, कॉपी, राइट। सो सिमिलरली ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज एन इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब जो वहाँ पे लिखा था, किसमें, वो ये जो ब्रोशर होगा, जो भी प्लान होगा, उसके अंदर जो भी लिखा था, यहाँ पे एक रूम चाहिए, यहाँ पे 2 रूम चाहिए, पार्किंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या घर बनाया। तो वैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब क्या किया,
उसके अंदर बोला होगा ये वेरिएबल्स होगा, ये डेटा होगा, इसको यहाँ पर मेमोरी रख दो। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? मेमोरी स्पेस एलोकेशन। किसको? जो क्लास के अंदर आपने बोला था कि इस ये स्टूडेंट होगा तो इसके ये डेटा होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ उसके अंदर होगा। उन सब फील्ड्स को आप डेटा रखना मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब बहुत सिंपल है, क्या है? टू ऑक्यूपाई द मेमोरी स्पेस, टू ऑक्यूपाई द मेमोरी स्पेस। ठीक है, सिंपल। अभी एक क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब एक प्लान के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हमें उसे बोलते हैं क्लास कंपोनेंट्स। मतलब एक क्लास के अंदर, एक प्लान के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, तो वहाँ पे आप 5 चीज़ें लिख सकते हो। क्या क्या? वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, अभी आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये समझेगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हमने बहुत सारा उसके ज्ञान पहले से ले रखा है। हमने 1 महीने से बैच चल रहा है, तो आपको ऐसा कंपल्सरी आपको समझेगा, लेकिन बाकी लोग आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? फिजिकल एंटिटी। तो उसका कुछ एट्रीब्यूट्स होगा। लेट से आप एक स्टूडेंट हो, ऑब्जेक्ट आपका क्या एट्रीब्यूट्स हैं? नेम, आईडी, रोल नंबर, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर। आपके बिहेवियर क्या है? आप क्या क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, फिर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ये आपके बिहेवियर्स। वैसे कोई बैंक अकाउंट है, कोई बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट एक कोई ऑब्जेक्ट है। सबका बैंक अकाउंट है, यहाँ पर पैसे हो ना हो अलग की बात है, लेकिन बैंक अकाउंट सबका है। उसमें क्या होता है? पैसा होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक हर एक का अलग अलग डेटा होगा, राइट? आपका भी कस्टमर आईडी होगा, आपका भी कस्टमर आईडी होगा, आपका भी अकाउंट नंबर होगा, आपका भी नाम होगा, आपका भी बैलेंस होगा। सबका बैलेंस सेम होगा ऐसे कंपलसरी नहीं है, सबका नेम सेम होगा कंपलसरी नहीं है। तो ये हर एक का डेटा रखना मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट्स। तो पहले आप क्या बनाओगे? क्लास स्ट्रक्चर। बैंक वालों ने सोचा होगा कि कोई भी कस्टमर्स आएंगे तो उनका अकाउंट मेंटेन करने के लिए मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए, तो आपने बस ऐसे लिस्ट डाउन कर दिया, आपने बस लिस्ट डाउन कर दिया। ठीक है, ठीक है। नाउ सी हियर, कोई मुझे बैंक के अंदर डेटा रखना है, तो बैंक ने पहले से ऐसे डिसाइड किया होगा कि यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी होगा, फिर यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा। या आप क्या बना रहे हो? ये आप बना रहे हो बस, फिर यहाँ पे नेम होगा किसी का, फिर फ़ोन होगा, ईमेल होगा, ये तो बात की बात है, पहले बैलेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर कस्टमर आईडी जो भी है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होगी। ये उन्होंने बस डिज़ाइन किया कि ये फील्ड्स होनी चाहिए, ये सारे कॉलम्स होना चाहिए, ये एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। जब भी कोई नई कस्टमर बनाना है, मुझे बैंक में कोई कस्टमर आता है, उसको अकाउंट ओपन करना है, तो लेट से पहला कस्टमर आ गया तो उसका कस्टमर आईडी हो गया लेट से 1, बैंक अकाउंट नंबर भी लेट से हो गया 1, नेम हो गया लेट से सचिन, फ़ोन हो गया 123, ईमेल हो गया abc@gmail.com, और बैलेंस हो गया लेट से 1000 रुपीज़ या 10,000 जो भी है। यहाँ पे देखो आपने, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा कस्टमर आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा, चौथा। यहाँ पे आप डिटेल्स रख सकते हो, जो भी आईडी है उसका, 4, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर भी आप कुछ अलग से लिख सकते हो। ये कस्टमर आईडी अलग होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक कस्टमर के बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, तो इसलिए आप कस्टमर आईडी मेंटेन करते हो और उसके बहुत सारे अकाउंट नंबर्स मेंटेन कर सकते हो। तब ये हो गया आपके कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, इंफॉर्मेशन, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स। ये क्या हो गया आपके एट्रीब्यूट्स। ये आपका काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर हो गया, क्लास हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज काइंड ऑफ अ क्लास और अ स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया आपके? पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा। तो कितने सारे फील्ड्स लिख सकते हो आप? एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप ऐड कर सकते हो। तो एक रिकॉर्ड बन गया आपका एक ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका एक वन ऑब्जेक्ट, अनदर, थर्ड। तो विद हेल्प ऑफ दिस कॉलम्स आप कितने सारे डेटा ऐड कर सकते हो, कितना सारा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो? यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लास ऑब्जेक्ट, आई थिंक मुझे
अभी और एक एनालॉजी बताता हूँ कार बनाने के लिए। अभी लेट से कोई आपका, लेट से आगे जाके आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाले हो, तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लेट से आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का कार बना, मतलब उसका कंपनी बनाना है, आप कार मैन्युफैक्चर करने वाले हो, तो क्या चाहिए आपको पहले? रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, यस यस, बोलिए बोलिए। ठीक है, पहले तो डिज़ाइन होगा, बाद में डेवलपमेंट, तो बाद की बात। पहले क्या होना चाहिए आपके पास? कितने, 4 व्हील चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो डिज़ाइन हो गया। फिर इंजन कितना चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, या बहुत बड़ा 10 चाहिए। उसका पावर क्या होना चाहिए इंजन का? फिर स्टीयरिंग कैसा होना चाहिए? लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, या सेंटर में होना चाहिए? फिर उसके बाद डूअर्स कितना होना चाहिए, 1 2, या विदाउट डूअर्स, ऊपर से एंट्री। ऐसे भी कर सकते हो आप। ये क्या करोगे, ये क्या कर रहे हो आप? पहले से डिसाइड कर रहे हो इतना सारा डूअर्स होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम कौन सा होना चाहिए, स्टीयरिंग क्या होना चाहिए, इंजन क्या होना चाहिए, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको। फ्यूल टाइप जो भी है ये पहले डिसाइड करते हो, आप पेपर पे लिखने वाले हो ये आप डिज़ाइन करने वाले हो। उसके बाद फिर एक्चुअल जब कार बनेगी वो क्या हुई आपकी? ऑब्जेक्ट्स। तो उस प्लान का यूज़ करके कितने सारे कार्स बना सकते हो आप? जितनी चाहिए उतने, राइट। तो एक्चुअल कार होगी आपकी ऑब्जेक्ट, और ये प्लान हो गया आपका क्लास। So using class we can create any number of objects. You can create any number of objects. So can you directly create the car? We need first plan and then we can create the car or object. ठीक है, तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल बोल दिया। तो कार का कुछ एट्रीब्यूट्स हो गया, इंजन, नंबर ऑफ डूअर्स, स्टीयरिंग, इंजन कैपेसिटी, पैसेंजर कैपेसिटी, ये क्या हो गया आपका? एट्रीब्यूट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन। अभी कार का बिहेवियर्स क्या हो सकता है, क्या फंक्शनलिटीज होगी? व्हाट आर द फंक्शनलिटीज? गियर चेंज करना, स्टीयरिंग घुमाना, ऐसे घूमे तो घूमना चाहिए ना, या नहीं घूमना चाहिए? ब्रेक अप्लाई किया तो रुकना चाहिए, अप्लाई ब्रेक, मूव द व्हील, ये सारी फंक्शनलिटीज हो गई, राइट। तो हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ एट्रीब्यूट्स हो गया, हर एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हो गया। You have attributes, you have behaviors. Similarly in programming also your object will have attributes and, अरे यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, बहुत सारा जगह है। हाँ ठीक है ले लो कॉल, ले लो, दैट्स फाइन। ठीक है, तो आपके पास एट्रीब्यूट्स हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? बिहेवियर, राइट। ये दो चीज़ें हो गया। तो इस दोनों चीज़ को, एट्रीब्यूट और बिहेवियर को, एक प्रोग्रामिंग में एक नाम दे दिया अलग से, क्या? वेरिएबल और मेथड। क्या दे दिया? वेरिएबल और मेथड। नाम क्या दे दिया उसको? वेरिएबल एंड मेथड। अभी इन दोनों चीज को उन्होंने बहुत सारे नाम दे दिए। क्या क्या नाम दे दिए? ये एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, इन दोनों को बहुत सारे नाम्स दे दिए उन्होंने। व्हाट आर द नेम्स वी हैव? कैन समवन टेल मी? एट्रीब्यूट्स को डेटा बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, फील्ड्स बोल सकते हैं, और प्रॉपर्टीज, और स्टेट वेरिएबल्स, और इतने सारे नाम है। तो और सारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन्होंने अपना अपना नाम दे दिया, बस कॉन्सेप्ट सेम ही है। यस, सो एट्रीब्यूट्स वी हैव। ये बिहेवियर को आपको पता है, मेथड, सी में उसे फंक्शन बोलते हैं, जावा में उसे मेथड बोलते हैं, और कोई लैंग्वेज में प्रोसीजर बोलते हैं, रूटीन भी बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, टास्क भी बोलते हैं उसे, और क्या बोलते हैं उसे, और ऐसे बहुत सारे नाम से। तो लेकिन सबका मतलब एक ही है, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। इसे स्टेट एंड बिहेवियर बोलते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक्स या बहुत सारी ब्लॉग्स, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती है। तो आपको समझना है कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बोलता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपको सोचना है कि ये बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, दे आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनलिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर और अ मेथड और अ टास्क। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गए। ठीक है,
तो अभी आपने बोल दिया कि कार में ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे और कार में ये सारी फंक्शनलिटीज़ होंगी और ये बिहेवियर्स होंगे। फंक्शनलिटीज़ बोल सकते हो, गियर चेंज करना ऑटोमेटिक है या जो भी है, ये होगी आपकी फंक्शनलिटीज़। ये पहले से आप प्लान करोगे या ऑन द फ्लाई बना दोगे? पहले ही बनाओगे ना, पहले कार एक्चुअल बनाने से पहले आपको ये सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो कार कौन बनाएगा? कोई तो बनाएगा ना, इंजीनियर, कोई तो वहाँ पे वर्कर होगा, कोई तो बनाएगा। तो कार बनाने वाले को या ऑब्जेक्ट बनाने वाले को हम एक नाम दे दिया कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर और डेवलपर, उसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्ट करना, कुछ तो डेवलप करना है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। परफेक्ट, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट बनाना। कार बनाना, कार बनाना मतलब क्या बनाते हो आप? हाँ, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। लेकिन कार बना रहे हो मतलब उसके अंदर आप क्या क्या बना रहे हो? डेटा रख रहे हो वहाँ पर। उसके अंदर लेट से आपने बोल दिया 4 इंजन रख दिया, स्टेयरिंग बोल दिया 2, दोनों को भी चाहिए तो 2 स्टेयरिंग लगा दिया, व्हील्स लगा दिया। ये एक्चुअल डेटा आपने रख दिया, राइट? आपने डेटा रख दिया तो डेटा रख दिया। डेटा ये रखने वाले को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इट इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सो व्हेन व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट? Perfect, perfect. You are going on the right track. Tell me. Perfect. Assigning the memory. Assigning the memory to the object. Object के अंदर क्या होगा? बहुत सारी डेटा रहेगा। अभी बैंक अकाउंट देखा था, कस्टमर आईडी, इनको जो वैल्यू रखने का काम कौन करेगा? ये कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर जॉब इज टू असाइन द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट, राइट? अभी कंस्ट्रक्टर, अभी देखो आप कोई, आप बस में तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, भीड़ होता है, क्या करते हो आप? आपको बस में एंट्री करना है, बहुत सारा भीड़ है, लेकिन बहुत भीड़ है वहाँ पे, तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? दूसरे बस में उतना ही भीड़ है, चलो आगे, राइट? एंट्री नहीं मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे खिड़की होगा, विंडोज होगा, वहाँ पे बैग रख दो, रुमाल रख दो सीट पे। ये क्या हो गया? हाँ, आपको सीट की एलोकेशन करनी है, राइट? एडवांस बुकिंग तो है नहीं वैसे यहाँ पर, तो आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो। कैसे? वहाँ पे कुछ डमी वैल्यूज रख के बोल सकते हो मेरा बैग है इधर, रुमाल है इधर, फिर झगड़ा करो बाद में। दैट इज अनदर थिंग। एक ये पहला ऑप्शन है, कम। ये पहला ऑप्शन क्या है? एक तो डमी वाली वहाँ पे रख दो, और दूसरा है कि आप ही खुद जाके बैठ जाओ। दैट इज एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन। एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन मतलब खुद वहां पे एक्चुअल डेटा रखना, मतलब खुद आप वहां पे जाके बैठ गए, ये हो गया आपका एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन। और दूसरा होता है डमी एलोकेशन। डमी मतलब आपको जो भी वैल्यू रखना है वहां पे रख दो। तो इससे क्या हो गया? मेमोरी एलोकेट हो गया। ठीक है, पहले व्हाट, व्हाई, हाउ। पहले व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, विल टॉक अबाउट दिस। व्हाट इज अ क्लास? It is a set of instructions to create object. क्यों चाहिए हमें क्लास? Why do we need class? To create object. और क्लास कैसे बनाते हैं? वहाँ पे कुछ तो उसका सिंटैक्स होगा, क्लास कीवर्ड है, फिर क्लास का नाम और कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर कुछ मेंबर्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और फिजिकल एंटिटी। परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। असाइनिंग द वैल्यू, ठीक है। व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट्स? असाइन द वैल्यू। बट अभी मुझे प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, अभी मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, सिस्टम बनाना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए? मुझे करेक्ट। तो अभी मैं कोई सिस्टम बना रहा हूँ, मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट या ई कॉमर्स या बैंक मैनेजमेंट, जो भी सिस्टम बना रहा हूँ, तो आप मैनेज कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? अभी लेट से आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हो, तो आप मैन्युअली, अभी लेट से कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर, तो आप मैन्युअली क्या करोगे? एंट्रीज लिखोगे, वहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम, सब कुछ ऐसे लिखोगे मैन्युअली।
लेकिन इसका मतलब ये स्केलेबल नहीं है ना। मेरे पास लेकिन 150 बच्चे तो ठीक है, लेकिन मेरे पास 1000, 10,000, 20,000 लोग हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा मैन्युअली। तो ये स्टूडेंट मुझे एज इट इज़, ये फिजिकल एंटिटी है, राइट, रियल वर्ल्ड एंटिटी है ये वाला, तो मुझे इसको मैप करना है प्रोग्राम में। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग ऐसा कंसेप्ट है जिसका यूज़ करके आप रियल वर्ल्ड, रियल मतलब अभी चलती फिरती दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स है, बस हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, स्टूडेंट, टीचर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनको उनको एज इट इज़ प्रोग्राम में मैप करना, मतलब उनको पकड़ में प्रोग्राम में रखना नहीं है, उनको एज इट इज़ रिप्लिकेट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट एंड क्लास यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट, हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। आपको क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, कौन कौन सा है। पहले प्लान चाहिए आपको, कोई उसको बनाने वाला चाहिए, तो कौन है बनाने वाला, कंस्ट्रक्टर। वी नीड क्लास कंस्ट्रक्टर न्यू। न्यू क्यों चाहिए आपको, न्यू मतलब आप नया कुछ चीज बना रहे हो, राइट, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, तो यू से कि क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आप न्यू कीवर्ड भी यूज करते हो। तो हमने यहाँ पे देखा है, ये देखो, आप ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ये स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, यहाँ पे 3 चीज़ है, क्लास, न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर। तो ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू कीवर्ड चाहिए, स्टूडेंट मतलब क्लास टाइप चाहिए, और कंस्ट्रक्टर कॉल भी चाहिए, राइट। तो कंस्ट्रक्टर, न्यू एंड क्लास, इन सब का यूज करके आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ये क्वेश्चंस देखो, इन द इंटरव्यूज आल्सो यू मे फेस, व्हाट इट इज, व्हाई डू वी यूज इट, हाउ टू यूज इट, ये सारा क्वेश्चंस अप्लाई करो, क्लास ऑब्जेक्ट पे यूज करो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर व्हाट इज इट, create object सो इसका यूज करके आप क्या करोगे, मेमोरी स्पेस एलोकेट करोगे या ऑब्जेक्ट बनाओगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। परफेक्ट, गोइंग फॉरवर्ड। चलो, ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट व्हाट इट हैज, every object has 2 things bare minimum, attributes, functionalities, attributes and functionality. Think of a car, what car has attributes, मतलब number of wheels, number of engines, steering, number of doors, ये हो गया आपका attribute हो गया। आपका attributes क्या है, ID, आपका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, ये होगा एट्रीब्यूट। दूसरा होता है फंक्शनैलिटी, मतलब कोई भी कार क्या फंक्शनलिटी करेगी, बैंक अकाउंट ले लो, बैंक अकाउंट से आप क्या फंक्शनलिटी करके ले सकते हो, विड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी, ट्रांसफर मनी, टेक द मिनी स्टेटमेंट, ये बहुत कुछ है आपके पास, ये क्या होगी फंक्शनलिटीज। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में बनाने के लिए कोई तो बनना चाहिए, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, एट्रीब्यूट्स, फंक्शनलिटी एंड कंस्ट्रक्टर। बिहेवियर भी बोलते हैं आप इसको, फंक्शनलिटी को, फंक्शनलिटी एंड बिहेवियर वन द सेम थिंग, इन सबको एक ही चीज बोलते हैं। ठीक, 3 चीजें आपके पास, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर एंड कंस्ट्रक्टर। एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स, बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द फंक्शनलिटी, मतलब क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करने वाला है, और कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, मेमोरी असाइन करते हो। वेरी सिंपल गाइस। और कौन सा मेमोरी आप असाइन करने वाले हो, हाँ, तो मेमोरी कौन सा होता है, एग्जीक्यूशन मेमोरी। एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा मेमोरी यूज करते हैं अपन, रैम। तो रैम के अंदर आप ये एग्जीक्यूशन मेमोरी, ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब प्रोग्राम कोई रन हो रहा है, प्रोग्राम रन होते टाइम आपको कुछ डेटा स्टोर करना है, कहाँ पर, एग्जीक्यूशन मेमोरी में, तो वहां पे आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज करें, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर, constructor name itself it is saying construct something, so it is going to construct the objects, so we need constructor to create the object. Now creating the object is nothing but putting the memory or allocating the memory space, allocating the memory space. ठीक, memory allocated कब होगी, at the time of execution, वहाँ पे कोई रखेंगे when we put some value, right। तो इन सब का भी बहुत सारा टाइप्स है, पैरामीटर इज कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरामीटर। हाँ हाँ पूछो। मेमोरी में डेटा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर पहले से ही लाइक कैसे मेमोरी असाइन कर देगा, डमी वैल्यूज रख देना वहाँ पर। पॉसिबल लाइक डमी वाली भी एग्जीक्यूशन से पहले हो सकते हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम चालू हो गया, आपको कुछ डेटा रखना है, राइट,
एग्जीक्यूशन चालू हो गया, ऑन द फ्लाई आपको कुछ डेटा रखना है, लेट्स से कोई एडिशन ऑफ 2 नंबर्स प्रोग्राम कर रहे हो आप, कैसे चलेगा वो? हाँ 2 नंबर है, मुझे वो वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर तीसरा नंबर मुझे उनका एडिशन करके रखना पड़ेगा, तो मेमोरी कैसे एलोकेट होगा वो, आप मुझे बताओ। सब वेरिएबल्स को तो इंस्टेंटली मेमोरी मिल जाती है ना, वो वेरिएबल किसका पार्ट है? ऑब्जेक्ट का, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का, इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स है, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, तो हम उसका टाइप अभी देखने वाले, विल कम टू दैट। आप सब ये मेमोरी। हाँ हाँ, तो अभी वही देखना है, अपन वहाँ तक गए नहीं ना अभी तक, ये इधर अपना बाकी, इधर वेरिएबल्स, अभी अपन क्लास ऑब्जेक्ट में खेल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम देखो, सब कुछ हम जो डेटा की बात कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स बात कर रहे हैं, कब मेमोरी एलोकेट होगा? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। लेट्स से मैंने कोई इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि a प्लस बी, ए एंड बी आर द वेरिएबल्स, 120, 100 और 20 का एडिशन करो, तो 100 कहीं तो स्टोर होगा ना, 100 कहीं पर स्टोर होगा। आपका सिंपलेस्ट ऑफ प्रोग्राम देखो, आप ऐसे लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसे कॉल करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, तो जैसे ये लाइन का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल हो गया, 10 क्या है? 10 एक वैल्यू है, कौन से टाइप की है? इंटीजर। इक्वल टू मतलब ये 10 वैल्यू ए को असाइन करो, मतलब ये क्या होता है? एक कंटेनर होगा, उसको कुछ नाम दिया होगा ए, और उसके अंदर वैल्यू होगा 10, इसको कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, तो ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? इट इज़ अ नेम गिवन टू अ कंटेनर, इट इज नेम गिवन टू अ कंटेनर, कंटेनर मतलब मेमोरी जिसके अंदर आपका वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर आएगा क्या होगा? मेमोरी एलोकेट होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, इस लाइन पे मेमोरी कंट्रोल आ गया यहाँ पर, तो आपका मेमोरी एलोकेट हो गया बस। तो एक कंटेनर होगा, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगा सीधा सीधा। दूसरा लाइन, दूसरा एक कंटेनर, इसके अंदर 20 लिख दिया, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट c इक्वल टू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इनका सम होके फिर तीसरा कंटेनर बनेगा, इसके अंदर आपका वैल्यू बनेगा 30। सर एग्जीक्यूशन से मतलब क्या है कि जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं या फिर जब लिख रहे हैं? रन, हम कौन सी एग्जीक्यूशन हो गया? ठीक है, देखो पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम नोटपैड में लिख दिया प्रोग्राम, वो तो कहाँ पर प्रेजेंट है? ये वाला प्रोग्राम कुछ लिख दिया मैंने प्रोग्राम, ठीक है, नोटपैड पे प्रेजेंट है इधर, ठीक है, नोटपैड पे प्रेजेंट है। अभी इसका क्या मतलब? ये तो डिस्क पे प्रेजेंट है ना, प्रोग्राम तो बहुत सारे हो सकते हैं, फिर इसका क्या करते हैं अपन आगे? हम इसे कंपाइलेशन के लिए देते हैं, हम कंपाइलेशन के लिए देंगे, फिर कंपाइल होने के बाद क्या जनरेट होता है जावा में? डॉट क्लास। डॉट क्लास में क्या होता है? डॉट क्लास में क्या होता है? बाइट कोड होता है, इंग्लिश लाइक कोड होता है, बाइनरी होता है क्या? फिर आगे उसके बाद क्या होता है? सर ये हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, यू आर करेक्ट। चलो, आपने कोड लिख दिया, इसको सेव कर दिया ऐप डॉट जावा, परफेक्ट। आगे इसको दिया किसको? कंपाइलर भाई साहब, गलती निकालेंगे आपकी, जो भी मिस्टेक्स है, एरर्स है, फिर जनरेट क्या करेगा? आउटपुट। ये जनरेट करेगा एक फाइल, उस फाइल का नाम होगा ऐप डॉट क्लास फाइल। इसके अंदर क्या होगा? इंग्लिश लाइक कोड होगा, इंग्लिश होगा, जीरोज एंड वंस नहीं होंगे इसके अंदर, क्या होगा? इंग्लिश बाइट कोड, इसे आप बाइट कोड भी बोलते हो। फिर इसे किसको देते हो आप? फिर से कौन भाई साहब है? जेरी, जेरी भाई साहब है, ये क्या करेंगे आगे? ये जनरेट करेंगे मशीन कोड, ठीक है, और ये फिर रन होगा आपके मशीन पर। तो रन होगा मतलब ये इंस्ट्रक्शन है ना, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया कि, फिर से आते यहाँ पर, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इस लाइन पे आ गए, आप ये इंस्ट्रक्शन आपने इंग्लिश में लिख दिया, इसको उसने इंग्लिश का जीरोज एंड वंस में किया होगा। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब होता है अभी एक कंटेनर लो, उसके अंदर कुछ वैल्यू रख दो, कौन से टाइप की? इंटीजर टाइप की।
दूसरे लाइन पे आ जाओ, वहाँ पर भी एक और कंटेनर ले लो और उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू रख दो। और एक और तीसरा लाइन क्या है, इन दोनों का एडिशन करो और एक तीसरे कंटेनर में इसका स्टोर करो। ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया ना हमने, वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस हमने दिया, राइट। सो एक्सप्लिसिटली वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन, ये होता है। अभी आप मल्टीप्लिकेशन करना है 2 नंबर का, 10-20 कर सकते हो, लेकिन ये 20 डिजिट का नंबर है 2, तो कर सकते हो क्या? तो इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रहे हैं हम कंप्यूटर को? सो व्हाई वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर? टू सिंप्लीफाई आवर लाइफ, टू रिड्यूस आवर एफर्ट्स। ये सेम काम आप कंप्यूटर से करके ले सकते हो, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ठीक है। लेट्स कम बैक, चलो। हाँ, क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन था फिर से शिवानी? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? हाँ, तो मेमोरी कब मिलता है? हाँ, रनिंग द प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन वन बाय वन अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? कुछ प्रिंट करने का या कुछ मेमोरी एलोकेट करने का, ये इंस्ट्रक्शन हो गया ना। मेमोरी एलोकेट करो, ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर कुछ वैल्यू रखो। नहीं 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 नहीं, तब नहीं होगा, ठीक है। ओके, परफेक्ट। और कोई डाउट, क्वेरी आप लोग को? होना चाहिए ना क्वेरी? हाँ, समझ गए ना? ठीक है, फिर समझा। लेकिन आपको ये भी समझा होगा कि पिछला वाला क्लियर नहीं होगा तो समझने में दिक्कत होती है। यस। तो हमने यहाँ तक अभी तक 25 क्लासेस करी है, आप 26वीं क्लास में बैठे हो, ठीक है। ठीक है, नो वरीज। ठीक है, आप भी समझ जाओगे, 25 क्लास इसके पहले हो जाएगी, फिर आप ये भी 100% पूरा समझ जाओगे, ठीक है। क्लास के अंदर बोलो बोलो बोलो, एनी क्वेरीज? पूछो, ठीक है। सो आपने क्लास लिखी, इसको कुछ नाम दे दिया आपने, स्टूडेंट। क्लास मतलब आपने प्लान लिखने का ट्राई किया। अभी हम स्टूडेंट को बनाएंगे, लेट्स से कोई कार, मुझे क्या करना है, कार बनाना है। तो ये कार क्या हो गया, एक प्लान का नाम। ये कार डिजाइन बना रहे हैं, उसको बोल दिया कि ये प्लान का नाम है। तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे इसे बोलते हैं प्लान, कि आपका कार कैसे बनेगा। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हो आप? 5 चीजें लिख सकते हो। क्या 5 चीजें? ये 5 चीजें, वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स और नेस्टेड क्लास। प्लान के अंदर प्लान दूसरा। तभी वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल आपको पता ही होगा, वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लास ऑब्जेक्ट सबको क्लियर है? वेरी क्लियर। ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट के पास डेटा होगा और कुछ उसके फंक्शनलिटीज होगी, राइट। तो डेटा रखने के लिए आप जो चीज़ यूज़ करते हो उसे आप बोलते हो वेरिएबल। क्या यूज़ करते हो? वेरिएबल। अभी वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, इसका यूज़ करके आप डेटा स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डेटा स्टोर कर सकते हो। तो डेटा, लेट से मेरा कोई कंटेनर है, मेमोरी कंटेनर, कंटेनर ही होता है। इसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, बहुत बड़ा हो सकता है, और इसके अंदर जो लेट से मैंने वैल्यू रख दी 20 एज इट इज़ नहीं रहेगा, ये 20 बाइनरी में रहेगा। लेट मी टेल यू, ये जो भी आप 20 लिख रहे हो, ये 20 एज इट इज़ नहीं रहेगा इसके अंदर, ये बाइनरी में लिखा जाता है। ऑटोमेटिक कन्वर्ट, मशीन को क्या समझ में आता है? दो ही चीज़, जीरोज एंड वंस। तो जो भी आप डेटा रखोगे सब कुछ जीरोज एंड वंस में ही रहेगा, सब कुछ जीरोज एंड वंस में ही रहेगा। तो मैंने बस इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका 20 लिख दिया, लेकिन 20 एज इट इज़ 20 नहीं स्टोर होगा, उसका बाइनरी वर्जन स्टोर होगा। अभी लेट से मेरा कोई कंटेनर, इसके अंदर कोई मुझे वैल्यू रखना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए आपको? उसका मेमोरी एड्रेस, उसको आपको पता होना चाहिए मेमोरी एड्रेस। लेकिन मेमोरी एड्रेस का यूज़ करके आप वैल्यू स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सिंपल एनालॉजी, आपके मोबाइल नंबर में, आपके मोबाइल में कितने सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर आपको याद है? 3, 2, 4, 5। 5, बहुत सारे स्मार्ट होंगे, 7, 8, 9, 10। 10 के ऊपर है क्या नंबर किसी के याद? नहीं होंगे।
नाम कितने बता सकते हो आप? 100 नंबर तो बता, मतलब 100 नाम तो बता पाओगे. यस, व्हाई इज इट सो? हमारे माइंड का कंडीशन ऐसा है कि हमको नंबर डिफिकल्ट लगता है, तो नंबर के साथ डील नहीं करते अपन, हम बस नाम के साथ डील करते हैं. तो वैसे ही अभी लेट से मुझे कोई वैल्यू रखना है, तो मुझे कंटेनर चाहिए, लेकिन कंटेनर चाहिए तो उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए, राइट? कंटेनर चाहिए, आपको वैल्यू कुछ रखना है तो कंटेनर चाहिए, आपको मेमोरी चाहिए, तो उस कंटेनर का आपको मेमोरी एड्रेस भी पता होना चाहिए. देन ओनली यू कैन स्टोर द वैल्यू. लेट्स से इसका कोई फर्स्ट टाइम इसका एड्रेस है, ठीक है, बहुत बड़ा एड्रेस है, फर्स्ट टाइम आप ले लो, ठीक है, दैट्स फाइन. आपने वैल्यू रख दिया 20, यू हैव ऐड द वैल्यू 20. मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है, इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करोगे? इससे एक्सेस करो. लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? याद और एक्सेस करना भी डिफिकल्ट है. लेट से मैं आपको बोलता हूँ कि कोई नंबर है आपके मोबाइल में, वो एक्सेस करो. नाम से आपको जल्दी एक्सेस कर पाओगे, लेकिन मैं नंबर से बोल रहा हूँ नाम एक्सेस करो. क्या बोल रहा हूँ? नंबर से नाम एक्सेस करो, तो डिफिकल्ट है. तो हम क्या करते हैं फिर, ये डिफिकल्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, ये एक तो पहला नाम हो गया, इसको एक और नाम देंगे, लेट से ए. ए मतलब ये 20 सीधा, इंस्टेड ऑफ दिस एड्रेस वी जस्ट एक्सेस दिस वैल्यू विद हेल्प ऑफ ए. तो ए हम बोलते हैं वेरिएबल, और ये आपका हो गया वैल्यू, और ये हो गया आपका मेमोरी एड्रेस. सो फिर से लगाओ अपना स्ट्रैटेजी. व्हाट इज वेरिएबल? व्हाई डू वी यूज वेरिएबल? इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस. बहुत टाइम के बाद क्लास में बैठे हो क्या? ठीक है, आई अंडरस्टूड. ठीक है, कोविड के बाद पहली बार बैठे हो क्या? ठीक है. So variable is just a name given to a memory location address. Why do we give a name to a memory location address? Easily access value or store the value. To easily access the value or store the value. तो variable क्या है? Variable है, it is just a name given to a memory location address. क्या है? इसको क्या किया हमने? It is just a name given to a memory location address, so that accessing or storing the value in this container becomes easy. So what and how we know that? What, why? So it is just a name given to a memory location address. Why do we use this? We use variable to store some data easily. We use variable to store data easily. डेटा पहले से तो उसको एक्सेस करना भी इजी हो जाता है, या नया डेटा ऐड करना है तो भी इजी हो जाता है. सो एक्सेसिंग डेटा और स्टोरिंग द डेटा बिकम्स इजी. हाउ डू वी यूज दिस? इसका यूज करके अपन वेरिएबल को यूज करके डेटा कैसे स्टोर करेंगे? पहले तो हमने व्हाट क्वेश्चन देखा. व्हाट इज वेरिएबल? इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस. इस कंटेनर का कुछ एड्रेस होगा, तो उसको बस नेम दे दिया कि इसको एक्सेस करना है तो इससे भी एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे वैल्यू है. यस यस, वन सेकेंड. या okay, you said you already created a variable int a equal to 20. Okay, so in this case you are just changing the value of a. Earlier it was 20, then it has changes to, yes. Hmm. Okay, okay. No, no, it will be changed, it will be changed. Correct, correct. After this your a value will be changed to this 10. 20 means there is a value is replaced. 20 value is replaced. It is replaced.
यस, राइट। इससे याद आया मुझे, आपका कभी किसी को आपको डेटा रिकवरी करना है, लेट से आपने गलती से डिलीट कर दिया सब कुछ डेटा, और आपको चाहते हो कि डिलीट उसको वापस करना है, तो उसके ऊपर कुछ नया डेटा मत ऐड करना। मतलब आपने डिलीट कर दिया और दूसरा ड्राइव लेके उस पर ऊपर कॉपी कर दिया, डेटा भूल जाओ, फिर डेटा भूल जाओ, क्योंकि डेटा रीराइट हो गया। अभी आपने डेटा डिलीट कर दिया, देयर इज अ चांस दैट यू कैन रिकवर द डेटा, बट आपने डेटा डिलीट करने के बाद उसके ऊपर, उस मेमोरी के ऊपर और कुछ डेटा रख दिया ना, तो फिर देयर इज नो चांस यू कैन रिकवर द डेटा, देयर इज नो चांस दैट यू कैन रिकवर द डेटा। तो ये ठीक है, मतलब डेटा एक बार डिलीट कर दिया, उसके ऊपर दूसरा डेटा ओवरराइट कर दिया, तो पुराना वाला डेटा भूल जाओ, यू कैनॉट रिकवर, यू कैनॉट रिकवर। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज जस्ट अ, अब ये कंटेनर है, इसका कुछ तो एड्रेस होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखना है, लेकिन वैल्यू को रखने के लिए मुझे इस कंटेनर का एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस ढूंढना तो फर्स्ट टाइम ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगेन बार बार मुझे इस मेमोरी एड्रेस पे याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वैल्यू दे देता हूँ। तो ये वैल्यू क्या है? ये व्हाट इज दिस? ए इज जस्ट अ नेम, अल्टरनेट नेम, दिस इज जस्ट अ alternate name given to this particular memory address so that putting the value becomes easy. तो ये आपका what हो गया? What is a variable? Variable is just a name given to a memory location address. So this is a memory location address. ठीक है? Why do we use this? We use variable to store और access the value. और उसको कैसे एक्सेस करेंगे आप? हाउ टू यूज दिस वेरिएबल? वेरिएबल का यूज करना है हमें किसके लिए? डेटा कुछ रखने के लिए। तो कैसे करोगे आप लिखते हो int a इक्वल टू 20। सो ऐसे आप डेटा स्टोर करते हो यूजिंग वेरिएबल। ये आपका व्हाट क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन एंड हाउ। सो ये 20 इज स्टोर्ड इनसाइड दिस वेरिएबल a। सो ए हो गया आपका वेरिएबल, और ये इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका यूज करके आप क्या करते हो? राइट हैंड साइड वैल्यू, परफेक्ट, ठीक। और ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब ये 20 किस टाइप का डेटा है, मतलब उस कंटेनर में आप कौन से टाइप का डेटा रख रहे हो, इंटीजर रख रहे हो, स्ट्रिंग रख रहे हो, जो भी टाइप का, तो ये होता है उसका डेटा टाइप, कौन से टाइप का डेटा आप रख रहे हो। ठीक है, चलो बैक टू क्वेश्चन। आपको एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, मुझे डेटा को स्टोर करना है, तो क्या यूज करोगे आप? आई वॉन्ट टू स्टोर सम डेटा, व्हाट आई वॉन्ट टू यूज? आई वॉन्ट टू यूज वेरिएबल। वेरिएबल का यूज करके आप कुछ वैल्यू रखोगे। ठीक है, लेट्स गो बैक नाउ। देयर आर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल इन द जावा। बस नाम याद रखो आज के लिए, उनका उसको देखेंगे। सबका काम क्या होगा? राइट, सबका काम स्टोर करने का, डेटा स्टोर करने का काम है सबका। तो इसे बोलते हैं लोकल इंस्टेंस स्टैटिक। इन तीनों वेरिएबल का टाइप है, इन सबका काम एक ही है, क्या करना है? डेटा स्टोर करना। सबका काम क्या है? डेटा स्टोर करना। वेरिएबल का धर्म होता है डेटा स्टोर करना, और स्टूडेंट का धर्म होता है पढ़ाई करना। टीचर का धर्म क्या होता है? पढ़ाना। तो वैसे वेरिएबल का धर्म होता है कुछ भी स्टोर करना। कोई भी टाइप का स्टूडेंट हो, कोई भी टाइप का टीचर हो, उनका धर्म उनको निभाना पड़ेगा। तो वैसे इस वेरिएबल का काम है स्टोर करना। तो कोई भी आपको बिना सोचे आपको समझना है कि वेरिएबल का यूज करके आप, ठीक है, ओके। सो लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। ठीक है, अभी आप देखो कॉलेज में आप पढ़ते हो, सबका अपना अपना डेटा है, सबका आईडी है, नेम है, वेरिएबल, आपका जो भी डेटा है, दिस इज स्पेसिफिक टू यू, राइट? स्पेसिफिक टू सबका। बैंक अकाउंट भी होगा, आपका अकाउंट नंबर होगा, कुछ नेम होगा, बैलेंस होगा। दूसरा स्टूडेंट है, उसका भी अकाउंट होगा, नेम होगा, बैलेंस होगा। तो ये कौन सा अकाउंट नंबर है? किसका है?
इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, इस बंदे का, ये डेटा पर्सनल है या कॉमन डेटा? ये पर्सनल है, राइट? आपका यूजर नेम पासवर्ड ये भी पब्लिक है, राइट? किसी का भी आप यूज कर सकते हो, राइट? पर्सनल है, राइट? तो डेटा विच इज स्पेसिफिक टू यू ऑब्जेक्ट, आप कौन हो? ऑब्जेक्ट, मैं कौन हूँ? ऑब्जेक्ट. सो द डेटा विच इज स्पेसिफिक टू यू, कौन सा डेटा ये? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक पर्सनल डेटा है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी शेयर्ड अक्रॉस. हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक यूजर का अपना डेटा है. तो मुझे ऐसा डेटा स्टोर करना है तो आप यूज कर सकते हो. इंडिपेंडेंट डेटा, इंडिविजुअल डेटा, ये इंडिविजुअल है, स्पेसिफिक टू यू ओनली. तो आप ऐसा डेटा स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो इंस्टेंस वेरिएबल. कौन सा डेटा? जैसे डेटा विच इज इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल डेटा स्पेसिफिक टू यू. तो ऐसा डेटा रखने के लिए आप यूज करते हो कौन से कैटेगरी का वेरिएबल? इंस्टेंस. अभी मुझे बताओ, सबका बैंक नेम सेम होगा? एक बैंक के लोग हैं, अरे सेम अकाउंट्स, सबका सेम होगा? लेट्स से सबका अकाउंट एसबीआई में, अभी जो भी बैठे सबका अकाउंट है एसबीआई में. तो मेरे पास लेट्स से 1000, लेट्स से कितने सारे कस्टमर्स है एसबीआई के? 1 CR, 2 CR, 10 CR, जो भी है. तो मैं सबके ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू लिखूँ, बैंक नेम इक्वल टू एसबीआई, बैंक नेम इक्वल टू एसबीआई, ऐसे 10 CR टाइम, व्हाट विल हैपन? अरे ये आप हर बार वैल्यू लिख रहे हो, ये हर बार आप वैल्यू लिख रहे हो, तो डुप्लीकेट डेटा ये डुप्लीकेट है. तो ये हर बार क्यों लिखना है फिर? तो इसको एक ही बार लिखो ना. ये डेटा कैसा है? कॉमन है. तो हर बार लिखोगे तो डुप्लीकेट है. दिस इज अ डुप्लीकेट डेटा. सो डेटा विच इज कॉमन, if you want to store some common data which is shared across all the customers, all the bank holders or objects. कौन सा डेटा? डेटा जो कॉमन है सबके लिए, डेटा विच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ दी कस्टमर्स. तो ऐसा कॉमन डेटा, ये चेंज होता है क्या एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक? ये चेंज होता है एक कस्टमर से, मतलब कस्टमर एक का बैंक अकाउंट एसबीआई है, कस्टमर 2 का एसबीआई आई है, ऐसे कुछ होता है क्या? राइट? तो ये कस्टमर इंडिपेंडेंट है. दिस डेटा डज नॉट चेंज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वन कस्टमर टू अनदर. तो इसे चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, चेंज नहीं होता. क्या चेंज नहीं होता? ये डेटा चेंज नहीं होगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. सो सच डेटा इज नॉट गोइंग टू चेंज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. सो ऐसा डेटा रखने के लिए आप यूज करते हो समथिंग कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल. क्या यूज करते हो? स्टैटिक. स्टैटिक स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, S स्टैंड्स फॉर शेयर. शेयर मतलब ये शेयर्ड डेटा है अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट्स. समझा? सब में डेटा ही रख रहे हो लेकिन डिफरेंट टाइप का यूज केस है. तो पहला डेटा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डेटा रखना है, ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक, आपके स्पेसिफिक. तो कौन सा टाइप का वेरिएबल यूज करोगे? इंस्टेंस. और डेटा विच इज कॉमन अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास और अ पर्टिकुलर बैंक, तो यूज करोगे स्टैटिक वेरिएबल. ठीक है? लेट्स से आप सभी अभी पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो सबका यूनिवर्सिटी, अभी एक यूनिवर्सिटी के अंडर ये सारे स्टूडेंट है, तो सबका यूनिवर्सिटी सेम ही है, एसबीपीयू. यस. तो ये डेटा कॉमन है. लेट्स से आप कोई वोटिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, तो सबका नेशनलिटी इंडिया ही होगा, इंडियन ही होगा, इंडियन लोग ही कर सकते हैं, राइट? वोट. तो सबका डेटा जब अभी लेट से वोटर का लिस्ट बनेगा, लेट से 100 CR, तो सबका नेशनलिटी आप ऐसे लिखोगे क्या? नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, ये डुप्लीकेट होगा. तो ये डेटा मुझे डुप्लीकेट नहीं करना है, तो ये सारा आप एक जगह पे एक ही बार लिखोगे. ये कितने बार लिखोगे? एक बार. तो ऐसा डेटा रखने के लिए आप यूज करते हो स्टैटिक वेरिएबल. क्या यूज करते हो? स्टैटिक वेरिएबल. अभी तीसरा आता है लोकल. ये लोकल क्या होता है? किसके हिसाब से चेंज होता है? जो डेटा चेंज होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज इंस्टेंस. मतलब आपका बैंक का अकाउंट नंबर अलग होगा, आपके दूसरे कस्टमर से बैंक बैलेंस भी चेंज होगा. तो मतलब ऐसा डेटा वो स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट है, आपके कस्टमर और ये अकाउंट के रिलेटेड है, वो इंस्टेंस हो गया. डेटा विच इज कॉमन वो हो गया स्टैटिक.
अभी लोकल का मतलब होता है टेम्पररी कैलकुलेशन। क्या करना है आपको? टेम्पररी कैलकुलेशन। ऐसा डेटा जो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड भी नहीं, आसपास भी नहीं हो, ऑब्जेक्ट का डेटा नहीं हो, मेरा कुछ डेटा नहीं है या किसी को कॉमन भी डेटा नहीं है, ऐसा डेटा जो टेम्पररी कैलकुलेशंस। टेम्पररी कैलकुलेशन मतलब टेम्पररी, ऐसा कौन सा कैलकुलेशन करते हो आप? हाँ स्वैपिंग, ठीक है। अभी लेट से स्वैपिंग, स्वैपिंग का नंबर, अभी मुझे क्या करना है, एक डेटा है, अभी इसका बहुत डिटेल में वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, ठीक है। ऐसा डेटा जो डेटा ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं है, क्लास के रिलेटेड भी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट का कॉमन भी नहीं है और उसका खुद का भी नहीं है, तो आपको कुछ टेम्पररी कैलकुलेशंस करना है। मतलब मुझे क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट का कस्टमर आईडी इंक्रीज करना है, लेट्स से 1 से, या उसको कुछ प्रीफिक्स लगाना है। लेट्स से एसबीआई है तो एसबीआई 001 ऐसा होना चाहिए, पहले क्या था 1 था, तो मुझे प्रीफिक्स ये वाला लगाना है एसबीआई। तो ये कैसे करोगे आप? ये तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक तो है नहीं, तो आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है, तो आप ऐसे लिखोगे स्ट्रिंग प्रीफिक्स इक्वल टू एसबीआई। ये क्या है? ये बस एक टेम्पररी डेटा आपने स्टोर कर दिया कि प्रीफिक्स। अभी इस प्रीफिक्स को आप यूज करोगे, ये टेम्पररी आपने स्टोर करा है, आपने क्या किया, टेम्पररी स्टोर करा है। तो पहले अभी लिस्ट है कस्टमर है, उसका आईडी है 1, ठीक है, मुझे इसको चेंज करना है, लेकिन किससे चेंज करना है, मेरे पास ये वैल्यू है एसबीआई, जो भी वैल्यू है, तो ये आपने बस टेम्पररी स्टोर करके रखा है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ ऐसे आपने एसबीआई रख दिया, तो मुझे क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है। कैसे करोगे आप? तो ये जो आपने टेम्पररी स्टोर करके रखी ये वैल्यू, इसे आप बोलते हो लोकल वेरिएबल। या कुछ कैलकुलेशन, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, एवरेज निकालना है या सम निकालना है या स्क्वायर निकालना है या क्यूब निकालना है, जो भी हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो लोकल वेरिएबल्स। इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करना है, लेट से आपको क्या करना है, किसी स्टूडेंट्स का आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए कैसे निकालते हो परसेंटेज? तो पहले आप क्या करोगे, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालोगे। आपके लेट से सब्जेक्ट 1 है, उसमें लेट से आउट ऑफ 100 आपको लेट से 99 है, सब्जेक्ट 2 में लेट से 80 है, सब्जेक्ट 3 में आपके पास 70 है। तो ये आपने डेटा स्टोर करके रखा है, ये ऑप्टेन मार्क्स है। ये कौन सा डेटा है? ऑप्टेन। तो यहाँ पे मैक्स मार्क्स भी होगा, मैक्स मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है 100। तो ये डेटा सबके लिए चेंज होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा, राइट, सबका। ये तो आपका हो गया स्टैटिक डेटा, क्योंकि ये सबका सेम ही रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा, ये आपका इंस्टेंस हो गया, ये एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक चेंज होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इनका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स। तो कैसे निकालोगे, इनका सम करोगे, 99 89 जो भी होगा, कितना आ गया ये 249, क्या बात है, अभी एग्जाम हो गया क्या? ठीक है, तो अभी जो वैल्यू रखा है ये क्या है वैल्यू, ये टेम्पररी वैल्यू है, ये भी टेम्पररी वैल्यू है, और टोटल, इनका टोटल निकालना है आपको, टोटल इतना है 300। अभी आपके पास दो वैल्यू, ये भी टेम्पररी हो गया, अभी मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज इक्वल टू जो भी आपका टेम्पररी वेरिएबल था, टोटल मार्क्स ऑप्टेन, टोटल ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। तो ये परसेंटेज क्या हो गया, ये आउटपुट आएगा आपको, ये कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, ये वेरिएबल में, परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज क्या हो गया आपका, लोकल वेरिएबल। तो ऐसे बहुत सारा कैलकुलेशंस कर सकते हो आप। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल, ठीक है। चलो लेट्स गो बैक, चलो फिर से ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं। वेरिएबल का काम क्या होता है,
What is a variable? What is a variable? It is a name given to a memory location address. मतलब एक कंटेनर को होगा, उसको पहले से कुछ एड्रेस है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है हमें एक्सेस करने के, तो आप क्या करते हो, दूसरा एक नेम देते हो, तो क्या हो गया वो वेरिएबल। तो वेरिएबल इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस। क्यों नाम देते हो आप? नंबर डायरेक्टली सेव क्यों नहीं करते, नाम क्यों देते हो उसको? हाँ, इजी एक्सेस के लिए, इजी एक्सेस, डेटा एक्सेस स्टोर करने के लिए भी और एक्सेस करने के लिए भी। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हो आप? इंट जो भी किसका, लेट से मुझे किसी का एज स्टोर करना, इंट एज इक्वल टू लेट से 20, तो ये हो गया आपका 20 वैल्यू है, क्या है, एज काइंड ऑफ वैल्यू। इस कंटेनर में आप क्या, आप घर पे आप देखते हो कंटेनर्स रहेंगे, उसके ऊपर लेबल्स होगा, इसके अंदर जूस है, इसके अंदर जो भी है, ठीक है, तो इसके अंदर आप वैल्यू लगते हो, तो ये लेबल क्या हो गया आपका, वेरिएबल। लेबल कैसे लिखते हो आप? लेबल कुछ तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना, या ऐसे लिखते हो आप, इसके अंदर जूस है और इसके अंदर आपने लिख दिया मिल्क, ऐसे कुछ लिखते हो? नहीं, अप्रोप्रिएट उसके अकॉर्डिंग लिखते हो। तो वैसे ही लेबलिंग भी आपका कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंग। तो ये वेरिएबल का नाम भी अच्छे से दे दो, ABCDEFG ऐसे मत करो, उसके अंदर क्या स्टोर करने वाले हो उसका नाम करेक्ट लिखो। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वी हैव? लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। इन सब का काम क्या है? टू स्टोर डेटा और इजीली एक्सेस भी करना। तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा डेटा रखने के लिए आप यूज करोगे? विच इज ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब आपका खुद का डेटा, इंडिविजुअल डेटा है वो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का, वो चेंज नहीं होगा, वो खुद का है आपका। ऐसा डेटा जैसे बैंक नेम हो गया, कॉलेज नेम हो गया, यूनिवर्सिटी नेम हो गया, नेशनलिटी हो गया, और लेट से कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका कंपनी नेम सबका सेम होगा सारे प्रोडक्ट्स का। तो ऐसा डेटा, जो डेटा सबके लिए कॉमन है, सबके लिए मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। लेट से बैंक अकाउंट, सबके सारे बैंक अकाउंट्स, कोई बैंक है, सबका बैंक अकाउंट जो भी होगा उनका बैंक नेम क्या होगा, सेम। तो ऐसा डेटा जो सेम डेटा है, स्टैटिक डेटा है, विच इज नॉट गोइंग टू चेंज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, सो ऐसा डेटा रखने के लिए आप यूज करते हो स्टैटिक वेरिएबल। और तीसरा आता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का यूज करके आप क्या रखोगे, डेटा रखोगे। कैसा डेटा? टेम्पररी कैलकुलेशन, जैसे किसी का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, टोटल कैलकुलेट करना है, या कोई किसी का जो भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस करना है, तो उसका डेटा रखने के लिए आप यूज करते हो लोकल वेरिएबल। ठीक है, तीनों डिफरेंट टाइप का डेटा। अभी ये कौन से मेमोरी में रहेंगे? मेमोरी में रहेगा डेटा ये, राइट। तो आप जो लोकल वेरिएबल बनाओगे, फिर इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे, फिर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे, राइट। तो ये तीनों टाइप का डेटा रखोगे आप, तो ये कौन से मेमोरी में रहेगा? ये मेमोरी में रहेगा, ओके यस, ये मेमोरी में ही रहेगा, लेकिन मेमोरी आपका डिवाइड हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। तो लोकल वेरिएबल्स कौन से मेमोरी में स्टोर होगा? ये मेमोरी है पूरा, दिस इज मेमोरी, और मेमोरी को डिवाइड किया। घर में आप डिवाइड करते हो या पूरा ओपन, ऐसे ओपन घर रखते हो? बेडरूम 1, बेडरूम 2, हॉल, किचन ऐसे सेपरेट करते हो, या ओपन ऐसे खुला रखते हो? नहीं रख। तो ऐसे मेमोरी भी उन्होंने सेपरेट आउट किया है। पहला जो पार्टीशन उसको नाम दिया है स्टैक, हीप एंड क्लास और मेथड मेमोरी एरिया। तो आपका लोकल वेरिएबल स्टोर होंगे स्टैक मेमोरी एरिया में, आपके इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होंगे हीप मेमोरी एरिया में, और स्टैटिक वेरिएबल स्टोर होंगे क्लास और मेथड मेमोरी एरिया। तो अलग अलग तीनों कंटेनर्स खुद का अपना एक डिवीजन बना दिया। स्टैक मेमोरी में आपके लोकल वेरिएबल स्टोर होंगे, हीप मेमोरी एरिया में आपके इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होंगे, और क्लास और मेथड मेमोरी एरिया में स्टैटिक वेरिएबल्स रहेंगे। This is very important for the interviews where your data is stored. Where what are the different types of variables are there? Why do we use that? Where they will be stored? Everything will be asked. चलो, cut the short. चलो.